Okay, so let us start with a quick revision of self-induction and self-inductance. So if you remember in the last session, we started with a topic called as self-inductance. Self-inductance is just a constant of proportionality. The main idea is self-induction. So हमारे पास what we have is a coil. हमारे पास एक coil है which is connected to a source of EMF and a key K. So as soon as you switch this off, मतलब when you close the key, a current starts flowing, और जैसे ही current flow होगा, and of course you know कि current when it flows it does not go directly to maximum value from zero. Example मैंने बताया था, हो सकता है इस बैटरी का कैपेसिटी और 10 एम्पियर का, जैसे ही की को क्लोज किया तो करंट स्लोली स्लोली बिल्ड होगा, मतलब 0 से 10 एम्पियर तक जाने के लिए इट विल टेक सम टाइम मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. बट व्हेन दिस करंट फ्लोज टू द कॉइल, दिस कॉइल स्टार्ट्स जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके खुद के इसके साथ ही लिंक्ड है. So there is flux linked with the coil. Good. Is this clear? So what is the total flux? As I told you, total flux is proportional to current. क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा. तो फ्लक्स इज proportional to current. And as I told you, in some books they will talk about flux linked per turn. For example, इस कॉइल में n number of turns है, for example, और हर एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक्ड इज phi b. तो टोटल फ्लक्स इज n इंटू पाई बी. तो जो टोटल फ्लक्स हमने लिखा है इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न. एंड एज यू कैन सी हियर, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट. So flux is equal to some constant of proportionality into current. This constant of proportionality L is called as self-inductance or coefficient of self-induction. Good. तो द आइडिया हियर इज, कॉन्सेप्ट ये था कि आपके पास एक कॉइल है, आपने उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट किया है एंड देयर इज अ की. जैसे ही की को क्लोज कर दिया तो करंट 0 से बढ़ रहा है टू सम मैक्सिमम वैल्यू. करंट चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और ये जो फ्लक्स है इट इज लिंक्ड विद द कॉइल इटसेल्फ. So you have a flux linked with the coil, or because flux is changing, and since flux is changing, EMF will be induced in the same coil. So this concept of induced EMF in the coil due to change in current in the same coil was called as self-induction. और जो L है it is self-inductance or coefficient of self-induction. Then हमें पता है self-induced EMF का फॉर्मूला क्या होता है. Self-induced EMF E is d phi by dt, of course with a negative sign because Lenz's law है. You can also put mod here, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो E equal to minus d dt of phi, but phi क्या है, Li. तो equal to minus L di by dt. अगर आप मॉड वैल्यू की बात कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज L di by dt. तो फिर हमने देखा था कि L इक्वल टू मॉड ऑफ E di by dt. So this is how you define self-inductance. It is the ratio of EMF induced in the coil due to rate of change of current in the same coil. Again, self-inductance or coefficient of self-induction is the ratio of EMF induced in the coil due to rate of change of current in the same coil. उसी coil में current change हुआ और उसी में EMF induced हुआ, right? Then we saw what are the SI units of self-inductance. And अगर आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो doesn't matter. It is EMF. EMF is in volt upon change in current with time, मतलब एम्पियर पर सेकेंड. ये ऊपर जाएगा तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, बट वोल्ट पर एम्पियर इज ओहम, तो ओहम सेकेंड, इसको आप बोलते हो हेनरी. तो SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी. एंड डायमेंशंस आई टोल्ड यू टू वर्क आउट बाय योरसेल्फ. तो इतना हमने देखा था. बॉटम लाइन,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये ही आपको आगे काम में आएगा। द बॉटम लाइन हियर इज, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है लेकिन खुद के करंट की वजह से हो रहा है, दैट्स इट। देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ बट ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल। कोई और कॉइल में करंट चेंज हुआ और ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ऐसा नहीं है। तो दैट इज द बॉटम लाइन, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि अब यू सी हमने सेल्फ इंडक्टेंस तो देखा, नाउ लेट अस derive an expression for inductance of a solenoid. So let us derive an expression for inductance of a solenoid. So what you have is a solenoid. आपके पास एक solenoid है और आपको पता है solenoid looks like, आपके पास एक कोर होता है। कोर मतलब बेसिकली अ बेस मटेरियल जिसके ऊपर आप वाइंडिंग्स करोगे। तो यू हैव अ कोर मोर और लेस लाइक दिस। तो आपके पास ऐसा एक कोर है, इस कोर के ऊपर आप वाइंडिंग करोगे, यू विल पुट वाइंडिंग्स हियर, और इस वाइंडिंग में से यू विल पास करंट, और करंट पास करने के बाद व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। या फिर व्हाट इज इंडक्टेंस, मतलब व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एल, क्योंकि ये जनरल डेफिनेशन है, दिस इज अ जनरल डेफिनेशन फॉर फॉर्मूला ऑफ एल, सेल्फ इंडक्टेंस। हमको यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मूला डिराइव करना है फॉर अ सोलेनॉइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल। इसका लेंथ हम मान लेते हैं स्मॉल एल। व्हाट वी विल डू इज हम डिराइव करते करते लिखते भी जाएंगे। सो कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल with n number of turns, है ना, with a coil, of course सोलेनॉइड के ऊपर एक कॉइल होता है with n turns। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, they are n, with n turns। let I be the current, flowing through the windings of solenoid, flowing through the windings of solenoid। जैसे ही यहाँ पे करंट की बात हुई, एज आई टोल्ड यू, इफ देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोगों ने ऑलरेडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक चैप्टर था जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द वाइंडिंग एट द सेंटर डिराइव करके रखा है, याद होगा, B equal to mu 0 Ni, if you remember, small n, where small n was total number of turns per unit length। Good, you should know one thing, जैसे ही इसमें करंट पास किया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड खुद के साथ ही लिंक्ड होता है। तो इसका फ्लक्स है, you have a flux of this solenoid which is linked with itself, right? So pretty simple thing, पहले सिस्टम को समझाओ। You have a solenoid of length L with n number of turns, let I be the current flowing through the solenoid to the windings of the solenoid, then क्योंकि करंट है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, फ्लक्स, और ये फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है, खुद के साथ लिंक्ड है, हर एक टर्न के साथ लिंक्ड है। तो लेट phi be the flux linked with each turn due to current I, Good. What is phi b? Flux linked with each turn. So what is total flux? Therefore total flux phi is equal to n times of phi b. Clear? So your total flux is n times of phi b. But do you remember, अभी हमने देखा total flux is proportional to current, but total flux is directly proportional to current. Therefore total flux is equal to L into I. Therefore ये equation number 2 और equation number 1, from 1 and 2
From equation number 1 and 2, you have n into phi b equal to Li. करेक्ट? क्लियर यहां तक? याद रखना इक्वेशन नंबर 3 यहां तक क्लियर है. डेरिवेशन इज सो सिंपल, सिर्फ स्टेप्स याद रखो. क्या करना है? सोलेनोइड लेना है, उस पे एल लेंथ है, उसके एन टर्न्स है, करंट आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो फ्लक्स का फ्लक्स हर एक टर्न के साथ लिंक्ड है. फाई बी इज द फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? कैपिटल एन. तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? एन इनटू फाई बी. The previous topic of self inductance, what you know is total flux is proportional to current. जितना ज्यादा current उतना ज्यादा flux. So flux is equal to Li, but total flux is n phi b equal to Li. Clear यहाँ तक? अब but wait a minute, do you remember? Let small n be the number of turns per unit length. Number of turns per unit length of the solenoid. या आ गया number of turns per unit length. Therefore capital N is small n into L. Also n times of phi b, NL phi b. But flux, do you remember flux का फॉर्मूला था b bar dot a bar. तो NL BA cos of theta, where theta is the angle between between B bar and A bar. Now if you remember that chapter जिसमें हमने magnetic field at the center of the solenoid निकाला था, अगर आपको याद होगा, वैसे याद नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता. You see, यहाँ से करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये साइड हो गया नॉर्थ, ये साइड हो गया नॉर्थ, और ये साइड हो गया साउथ. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ. दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? अगर मैं एक टर्न पे फोकस करता हूं तो एक टर्न मतलब ऐसा दिखेगा. एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल टू द एरिया. मतलब मैं इसको नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, मतलब बी बार और ए बार का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम. मतलब थीटा कितना है? 0. वेरी गुड. तो ये याद रखना. तो थीटा इज 0. Therefore theta is 0 since B bar and A bar has same direction. दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा इज 0. Therefore n times of phi b equal to NL BA cos of 0, that is 1. तो cos 0 कितना होता है? 1. Okay, so you have this as cos 0 as 1. लिख लेंगे उसको, because it is important for us to know this. Cos of 0 is 1. But wait a minute, if you remember, B at the center is mu 0 and I, और I को मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल से, तो स्मॉल I. ये आपने one of the previous chapter में सीखा है. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड इज mu 0 and I. किसमें? magnetic fields due to electric current. Good. So therefore n times of phi b, it is equal to NL and L. B is mu 0 Ni और बाद में आ गया A. Therefore you have n phi b equal to n into n square L mu 0 I और A. Let us give it some equation number 4. इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड है सेम. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, what you will have is n square L mu 0 I A equal to Li. राइट? क्लियर यहां तक? हाँ, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल करो. राइट? तो क्या बचा? नथिंग. What is left? What is remaining? N phi b
is NL, N into L, phi B. Phi B is B bar dot A bar. Okay, so B A cos theta, cos 0 is 1. So NL B A, B is mu 0 Ni. So N phi B was ये capital N है, याद रखना, this is capital N phi B, NLB into A. NLB is mu 0 Ni into A. तो ये आ गया N into N, N square L, mu 0 I and A. But N phi B is L into I, L into I. तो इक्वेट करो, तो Li इक्वल टू दिस. हमें फाइंड क्या करना था, क्या फाइंड करना था? नहीं नहीं, दैट इज व्हाट, इंडक्टेंस, एंड दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ कंफ्यूजन. हमने लेंथ कितना लिया है, स्मॉल एल, क्योंकि कैपिटल हम ले नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल एल इज फॉर इंडक्टेंस. तो आप देखो गड़बड़ कहाँ हुई. दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू कि डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन पैरामीटर्स. यहाँ पे जो कैपिटल एल है ना, ये स्मॉल एल होना चाहिए. दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और नॉर्मली दिस इज द, आई मीन, नॉर्मल कंफ्यूजन दैट ऑकर्स. अब ये जो आपने लिखा है और ये जो लिखा है, दिस इज ऑल स्मॉल एल, दिस इज लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. तो ये भी क्या आ गया, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. तो हियर also you will have length of the solenoid L, and if you have L here, you also have a small L over here and also small L over here. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब कैंसल नहीं होगा. वेरी गुड. तो स्मॉल एल और एल आई हो गया कैंसल. ये स्मॉल एल को वहां ले जाओ, क्योंकि मिल गया आपको इंडक्टेंस. किसका इंडक्टेंस? सोलेनॉइड का, which is n square L mu 0 A. I can write this as L by small l, मतलब inductance per unit length of the solenoid n square mu 0 A. So equation number 5 gives inductance per unit length of the solenoid. Equation 5 gives inductance per unit length, inductance per unit length of the solenoid. Simple. हो गया डेरिवेशन. मैं एक बार वापस से स्टेप्स को रिपीट कर देता हूँ. बहुत सिंपल है. व्हाट यू हैव इज, स्टेप्स पे ध्यान देना. इट्स ओके, थ्योरी यू कैन राइट. यू हैव अ सोलेनॉइड. आपको पता होना चाहिए सोलेनॉइड क्या होता है. सोलेनॉइड इज अ कोर. एक कोर है, इसके ऊपर आप वाइंडिंग्स करते हैं. तो यू हैव अ कोर एंड ऑन दिस यू हैव वाइंडिंग्स. आपके पास वाइंडिंग्स हैं इसके ऊपर. लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड आपने लिया है L. करंट आप सर्कुलेट कर रहे हो I. क्योंकि करंट सर्कुलेट कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो फ्लक्स होगा, और फ्लक्स कितना, जितना ज्यादा करंट. तो व्हाट यू नो इज टोटल फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I. करेक्ट. टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Li, but total flux is number of turns. Total number of turns on the solenoid is N. Number of turns into flux linked with each turn equal to Li. टोटल फ्लक्स ऐसे निकालेंगे ना, अगर मेरे पास 100 टर्न्स है और हर एक के साथ 2 का फ्लक्स एसोसिएटेड है, तो टोटल फ्लक्स इज 100 into 2, मतलब 200. तो यू हैव N phi B equal to Li. इक्वेशन नंबर 1. देन बट N phi B, पहले इसको फाइंड कर लो. इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्मॉल n है, स्मॉल n मतलब एक यूनिट लेंथ में, एक मीटर में कितने टर्न्स, तो स्मॉल n इज कैपिटल N by L. तो दिस इज कैपिटल N इक्वल टू NL. तो हियर यू विल राइट NL, और phi B इज फ्लक्स. फ्लक्स होता है B बार डॉट A बार. तो NL BA cos ऑफ थीटा, लेकिन थीटा कितना है, 0, तो cos 0 इज 1. तो NLBA, तो NLB, B is mu 0 Ni. This is small n, not capital N. Okay. So N into N is N square L mu 0 I A. ये आ गया आपका N
phi b. सम इक्वेशन नंबर अगर आप देखोगे, इफ यू सी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा. देयरफॉर Li इक्वल टू n स्क्वायर L म्यू 0 I और I कैंसल. देयरफॉर L by L is n स्क्वायर म्यू 0 A. दिस इज इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनोइड. क्लियर यहाँ तक? इज दिस क्लियर? तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन, दैट्स इट. अब जैसे आपको पता है कि यू हैव कैपेसिटर्स, बहुत सारे कैपेसिटर्स है, उसको आप अलग अलग तरीके से कंबाइन कर सकते हो. यू कैन कंबाइन इन सीरीज और इन पैरेलल. आपके पास रेजिस्टेंसेस है बहुत सारे, यू कैन कंबाइन देम इन सीरीज और इन पैरेलल. वैसे आपके पास इंडक्टेंसेस होते हैं. इंडक्टेंसेस मतलब बेसिकली कॉइल ही होता है. यू हैव अ कॉइल, लेकिन कॉइल के साथ जो नया पैरामीटर रिलेटेड है दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस. तो बहुत सारे कॉइल्स को आप सीरीज में लगाओगे, आप उसको बोलोगे कॉइल सीरीज में होना मतलब इंडक्टेंसेस सीरीज में होना, और कॉइल पैरेलल में लगाना मतलब इंडक्टेंसेस को पैरेलल में लगाना. राइट? फॉर एग्जांपल अभी आपके घर में अगर देखा होगा वाटर हीटर, वो जो बकेट में रखते थे आप, व्हाट इज दैट? दैट इज इंडक्टर कॉइल. दैट इज नथिंग बट इंडक्टर कॉइल. पानी कैसे गर्म होता है कभी सोचा है? वो जो कॉइल होता है ना, उसमें कॉइल होता नहीं. डिड यू हैव यू एवर नोटिस्ड? अभी तो नॉर्मली वी हैव गीजर्स, बट इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव सीन दैट, ऐसा नीचे कॉइल होता है. कॉइल होता है तो क्या होगा? करंट पास होगा. करंट पास होगा तो इन दिस केस बेसिकली हीट इज जनरेटेड. हीट कैसे जनरेट होता है मैंने बताया था आपको, देखा था कि कल ही देखा था हमने. करंट पास होगा तो हीट जनरेट होगा. गुड. तो यू कैन पुट मेनी कॉइल्स इन कॉम्बिनेशन, उसको हम बोलेंगे इंडक्टेंसेस इन कॉम्बिनेशन. इंडक्टेंसेस इन कॉम्बिनेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस, एक ही बात है. So what you can have is two combinations. So basically you may have many inductances which are connected either in series or in parallel. So number one, series combination. और इसका आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना है नहीं, आपको सिर्फ ऐसा बताना है when several inductances are connected either in series or in parallel, then the equivalent inductance is given by number one, in series combination. Inductances in series act like resistances in series. अगर मेरे पास n number of resistors in series हो, what is total resistance? If I have R1, R2, R3, R4, R5, R6, ऐसे मेरे पास resistances in series हैं, what is equivalent? R1 plus R2 plus R3 plus R4. तो वैसे ही इसका भी केस है, L1 plus L2 plus L3 and so on. Simple. Then parallel combination. If you have n inductances of value L1, L2, L3, L4 in parallel, then equivalent is 1 upon L equivalent 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3 and so on. जितने होंगे उतने. क्लियर? क्लियर? So far अब तक आज के लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्टेंस को रिवाइज किया. मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक एक स्टेप हमको आगे बढ़ना है. तो सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट यह था, हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल में जब करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स होगा, और वो फ्लक्स खुद के साथ ही एसोसिएटेड है. तो व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो कॉइल में खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो गया. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज सेल्फ induction. Self induction, right? The phenomena of production of induced EMF inside a coil, in a coil, due to the change in the current in the same coil was called as self induction. But flux linked with the coil is proportional to current, so flux is equal to some constant. इस constant को बोलते हो self inductance या फिर coefficient of self induction. But induced EMF is minus d phi by dt. Phi is Li, L को बाहर निकाल लिया,
देन आपने मैग्नीट्यूड ले लिया तो आपको N मिल गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम कॉइल, दिस वाज सेल्फ इंडक्टेंस. देन वी सॉ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. एक सोलेनॉइड है हमारे पास, सोलेनॉइड के ऊपर वाइंडिंग्स होते हैं, हमें ये देखना था कि व्हाट इज इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड. तो हमने एक क्वेश्चन डिराइव कर लिया, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड N2L mu 0A, राइट. हमको देखना है हर एक मीटर में कितना इंडक्टेंस, तो टोटल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट इज इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ किसका, सोलेनॉइड. दिस इज व्हाट यू हैव. नाउ हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंडक्टेंसेस है, उसको हमने कंबाइन किया. अगर सीरीज में कंबाइन किया तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज L1 plus L2 plus L3 and so forth. पैरेलल में कंबाइन किया तो 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3. दिस इज व्हाट यू गेट. यहाँ तक क्लियर. अब हमको देखना है एनर्जी ऑफ अ सर्किट, और आपके बुक में दो टॉपिक है, दोनों सेम टॉपिक, एग्जैक्टली सेम है, दो सेम चीज को दो बार डिराइव किया है. एक को बोला है एनर्जी ऑफ अ सर्किट और एक को नाम दिया है इन्होंने एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. बोथ आर द सेम. ओके, तो मैं अलग अलग से नहीं बताने वाला हूँ, वी विल कीप इट कंबाइंड. तो इस टॉपिक का नाम है एनर्जी ऑफ अ सर्किट, या फिर दे आर कॉलिंग दिस एज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एग्जैक्टली सेम. गुड. तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो. कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल. तो वापस से वही केस है, यू हैव अ कॉइल एंड यू हैव a source of EMF, then you have a key K plus minus. Then what happens is when the current in the coil changes, current in the coil changes मतलब magnetic field changes मतलब flux changes. Flux changes मतलब EMF is induced. ये जो EMF induce होता है वो क्या induce कर देता है, करंट. और देखो दो करंट आ गए. अब एक करंट जो बैटरी ने सप्लाई किया, मतलब इसने इसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस. और जो इंड्यूस्ड करंट है, अगर आपको लेंज लॉ याद होगा, लेंज याद है आपको, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. या फिर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. इसमें कॉज कौन था, करंट. कौन सा करंट, ये ओरिजिनल करंट. क्योंकि ओरिजिनल करंट फ्लो हो रहा था, ओरिजिनल करंट में चेंज हुआ तो ओरिजिनल करंट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, तो ओरिजिनल करंट का मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज हुआ. फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मतलब करंट इंड्यूस हुआ. और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो इंड्यूस करंट है वो अपोज करता है किसको, जिसने उसको प्रोड्यूस किया. मतलब वो जिस करंट ने उसको प्रोड्यूस किया उसी को अपोज कर रहा है. मतलब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट. क्लियर यहां तक. नाउ द आइडिया हियर इज, अगर ओरिजिनल करंट को इंड्यूस करंट अपोज कर रहा है तो ओरिजिनल करंट का जो फ्लक्स है वो बिल्ड हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता, इमेजिन. मैं इसको व्हाइट कलर से दिखाता हूं. आई शो यू, दिस इज विद व्हाइट कलर. ओरिजिनल करंट I flows. If current I flows, you have magnetic field which is proportional to current. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स है विच इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट. तो ये जो ओरिजिनल करंट आए जब फ्लो होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगा और इस चेंज इन फ्लक्स ने नया करंट इंड्यूस कर दिया और करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट. वेरी गुड. मतलब ऐसा कि ओरिजिनल करंट के लिए अगर ये साइड नॉर्थ पोल है, ये साइड साउथ पोल है, तो इंड्यूस के लिए उल्टा है. मतलब जो इंड्यूस करंट है वो तो ओरिजिनल के फील्ड को कैंसिल करने निकला. इसका मतलब ओरिजिनल करंट का फील्ड होना ही नहीं चाहिए, फिर भी होता है, राइट. नहीं होना चाहिए, फिर भी होता है. अगेंस्ट द अपोजिशन होता है. तो यू रिमेंबर इन फिजिक्स, जब भी कोई भी चीज अगेंस्ट द अपोजिशन हो तो वर्क हैज टू बी डन. एग्जाम्पल, जब आप चार्जेस को इंफिनिटी से एक एक करके ला रहे थे, पहले चार्ज को लाए, नो वर्क इज डन, क्योंकि अपोज करने के लिए कुछ था नहीं. फिर दूसरा चार्ज लाए, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट, राइट. सिमिलरली ओरिजिनल मैग्नेटिक
फील्ड, ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर इसको यहाँ पे डेवलप होना है तो ये जो इंड्यूस हो गया करंट, इसका जो फ्लक्स है वो उसको अपोज कर रहा है। तो ओरिजिनल फ्लक्स को अगर डेवलप होना है, स्टैब्लिश होना है, तो वर्क हैज टू बी डन। एंड यू ऑलरेडी नो, हमको ऑलरेडी पता है वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब पावर इज EI। याद है क्या? ये कल के ही सेशन में देखा था, कल या परसों। तो dw by dt is EI। तो वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF is EI dt। इज दिस क्लियर? पक्का? श्योर राइट। बट व्हाट इज E? माइनस d phi by dt। तो वर्क डन इज माइनस d phi by dt I dt। कैंसल। तो dw इक्वल टू माइनस d phi into I। बट व्हाट इज d phi? व्हाट इज phi? Li, राइट। तो L कांस्टेंट, L कांस्टेंट, तो क्या आएगा यहाँ पे? व्हाट यू विल हैव इज L di into I into I स्क्वायर मत कर देना। ये डेरिवेटिव के अंदर का I है, वो डेरिवेटिव के बाहर का I है, मतलब क्या आएगा? माइनस Li di। करेक्ट। सो दिस इज द वर्क डन। किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द इंड्यूस्ड करंट। किसने किया? ओरिजिनल करंट ने किया। क्यों किया? उसको क्या डेवलप करना था? मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड करंट, राइट, टू डेवलप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट di। अब टोटल वर्क डन निकालना होगा। टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे? मैंने बताया था, ऐसे हर 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 बार जो स्मॉल di करंट होगा, इट विल डू वर्क। तो टोटल वर्क विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टोटल करंट। टोटल करंट इज लेट अस से I0। मैंने इसके लिए आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि आप की क्लोज करते हो तो करंट डायरेक्टली मैक्सिमम नहीं होता। 0 फिर 0.1 मतलब di, फिर 0.1 से बढ़ेगा di, फिर 0.1 से बढ़ेगा di, राइट। तो हर करंट चेंज हो रहा है। जैसे ही करंट चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। जैसे फ्लक्स चेंज हुआ, EMF इंड्यूस हुआ। जैसे ही EMF इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। उस इंड्यूस करंट ने क्या किया? अपोज किया। तो हर बार फ्लक्स बनाने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। फिर वापस 0.1 से करंट बढ़ा, वापस वही प्रोसेस। करंट चेंज होगा तब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तब EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा तब करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा तो अपोज करेगा। इज दिस क्लियर? तो ईच टाइम देयर इज चेंज इन di, देयर इज वर्क डन। तो व्हाट इज द टोटल? क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि 0 से 10 एम्पियर तक का करंट चाहिए, तो 0 से मैक्सिमम, वेयर I0 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। तो दिस इज इक्वल टू 0 to I0 dw। व्हाट इज dw? di with a negative sign, Li di। बट वेट अ मिनट, L तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का काम कहां पे है? इंटीग्रेशन के बाहर। 0 to I0, करेक्ट। I स्क्वायर बाई 2 मतलब I इंटीग्रेट करने के बाद I स्क्वायर बाय 2, 0 to I0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस L बाई 2 I0 स्क्वायर। दिस इज वर्क डन। और अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज वर्क डन इज L बाई 2 I0 बाई 2, बट वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए इसका नाम था एनर्जी ऑफ सर्किट, राइट। बट वर्क कैन नीदर बी क्रिएटेड। वर्क किसने किया? करंट ने किया। क्यों किया? क्योंकि उसको क्या जनरेट करना था? मैग्नेटिक फील्ड। वर्क कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये वर्क एनर्जी, किसका एनर्जी? करंट का एनर्जी किसके पास गया होगा? नहीं 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 नहीं, वेट अ मिनट, व्हाट इज गेटिंग चेंज? देखो, द थिंग इज यू हैव टू थिंग्स। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देयर इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, बट व्हेन चार्जेस मूव मतलब देयर इज करंट, देयर इज आल्सो मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट होगा क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब करंट का एनर्जी
किसके पास जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, करंट का एनर्जी है, इट इज बेसिकली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के दोनों डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है। एनर्जी ऑफ सर्किट तक यहां तक डिराइव करके छोड़ दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड में यहां तक ही डिराइव किया है, सेम टू सेम। सिर्फ आखिरी में एक लाइन लिखी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, खत्म। तो दोनों टॉपिक सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। व्हाट वी विल डू इज, हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विल डू दिस अगेन, वेरी सिंपल, विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। द थिंग इज, what you have is a coil, then what you have is a source of EMF, मतलब बैटरी एंड अ की के। ये जो EMF का सोर्स है, इसका मैक्सिमम करंट कैपेसिटी I0 है, इट कैन गिव यू मैक्सिमम करंट ऑफ I0। होगा क्या, एज सुन एज यू क्लोज दिस की, करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, मतलब करंट इज चेंजिंग। तो अब मैं लिखने नहीं वाला हूं, बट यू कैन जस्ट एक्सप्लेन। कैसे एक्सप्लेन करोगे? करंट इन द कॉइल चेंजेस, फ्लक्स विद द कॉइल, change in flux induces EMF, which in turn induces current, and that current is opposite in direction to the original current. Hence, a work is done. ये जो है ना, ये ओरिजिनल करंट, इसको अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना है। Hence, work is done against the induced current to establish magnetic flux. Work done against a small current is dW equal to EI dt. dW by dt is EI, so dW is EI dt. Right? Clear यहाँ तक? Good. Then what you have is, ये हो गया work done in time dt, small amount of work done in small amount of time dt. Clear? Then what you have is, E क्या होता है? माइनस d∅ by dt। एक काम करो, पहले dt को कैंसिल करेंगे, लेकिन पहले phi की जगह पे li लिख लो, I dt, फिर l को आप यहां से आउटसाइड निकाल लो, यू हैव di by dt, और इस I को भी आगे ले लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। अब कैंसिल करो, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट स्मॉल करंट, स्मॉल इंड्यूस्ड करंट di, दोनों एक ही चीज है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट di इज द सेम थिंग, माइनस IL di, right? So total work done in establishing magnetic field of steady current I0, total work done W is integration, जीरो करंट से मैक्सिमम करंट कितना था? I0। अब बोलोगे I0 क्यों बोला? डजंट मैटर, आपको जो बोलना है वो बोलो, तो फर्क नहीं पड़ता। यू कैन कॉल इट एज Imax, आपके ऊपर है। तो दिस इज इक्वल टू dW 0 to I0 माइनस LI DI। अब क्योंकि L कांस्टेंट है, तो इट कैन बी टेकन आउट कॉमन, 0 से I0 तक I DI। तो दिस is I square by 2 within limits 0 to I0. Therefore, work done equal to minus L by 2. You will have I0 square. Magnitude wise, you have L by 2 I0 square. This is work done, and work is a form of energy. Hence, this also represents energy of the circuit. And since energy can neither be created nor be destroyed, ये जो करंट का एनर्जी है, इट्स stored in the magnetic field, hence this is the same equation for energy stored in magnetic field. अब हमको इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस के हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देखी, क्या था?
induced to that of rate of change of current in the same coil. Self inductance is defined as the ratio of coil to the rate of change of current in the same coil. हमको जो नया इक्वेशन है दिस वन, यहां से हमको एक अल्टरनेट डेफिनेशन मिल सकता है किसका, एल का. कैसे? इफ आई जीरो इक्वल टू 1, मान लो अगर आई जीरो की वैल्यू 1 एम्पियर है, then what you will have is work equal to L by 2, मतलब L equal to 2W, 2 times of work done. हो गया. तो self inductance L can also be defined as twice the work done, right? Twice the work done in establishing, in developing. My tongue gets skid sometime without friction. Anyways, so in developing the field, किसका फील्ड, कौन सा करंट का, कितना करंट था, 1 एम्पियर. So self-inductance is also defined as twice the work done in developing the field of magnetic field of unit, क्योंकि करंट की वैल्यू कितनी है, 1. Self-inductance is basically equal to twice the work done in developing the field of unit current. Correct? So this is alternate definition of inductance. Clear यहाँ तक? पक्का? What have you learned now? कि जो भी ये वर्क डन हुआ ये कहाँ स्टोर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में. मैग्नेटिक फील्ड में मतलब यहाँ पे स्टोर हो गया, राइट? यहाँ पे मतलब ये सोलेनॉइड था कि नहीं, कॉइल मतलब सोलेनॉइड ही था, सोलेनॉइड जैसा था, मतलब ये पूरा का पूरा वर्क डन इस सोलेनॉइड के अंदर स्टोर हो गया बोल सकते हो, क्योंकि फ्लक्स कहाँ पे है, जितना सोलेनॉइड है उतना ही एरिया में फ्लक्स है. यहाँ पे फ्लक्स था क्या, हाँ यहाँ पे फ्लक्स नहीं, फ्लक्स कहाँ था, सोलेनॉइड का जितना वॉल्यूम है उधर ही फ्लक्स था, राइट? तो अब आप फाइंड कर सकते हो एनर्जी डेंसिटी. व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? जैसे आप बोलते हो मास डेंसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय मास डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, दैट इज मास डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज. वैसे ही आप बोल सकते हो एनर्जी डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में, किसके यूनिट वॉल्यूम में, सोलेनॉइड के यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी, दैट इज एनर्जी डेंसिटी. तो मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बताता हूँ एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल गो इन डिटेल्स. तो एनर्जी डेंसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिनोटेड बाय U स्मॉल u सफिक्स b. क्यों? क्योंकि वर्क डन को हम नॉर्मली कैपिटल U से डिनोट करते हैं. तो एनर्जी डेंसिटी इज वर्क डन अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्योंकि वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ द सर्किट, और एनर्जी को किससे डिनोट करते हो, U. तो हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी स्टोर्ड per unit volume is energy density, correct? But what is U? Half L I0 square upon volume. What is volume of solenoid? Area into length, है ना? ये हो गया लेंथ L और ये हो गया एरिया. तो वॉल्यूम इज A into L. Into L. But wait a minute. Do you remember small l? Inductance per unit length. It is n square mu 0 A. So this is nothing but n square mu 0 A I0 square by A. Cancel and cancel. So half n square mu 0 I0 square. This is energy density. Done. This is the equation for energy density. किसका energy density? किसका energy density? Solenoid. Magnetic field of solenoid का energy density, because energy was stored in the magnetic field. Clear यहाँ तक? So tomorrow I will revise few topics again and then we will derive energy density equation. So that's it for today.